کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس وقت کی باتیں جو پرانے عہد کی ہیں اور نئے عہد کی ہیں، پرانے عہد کی پیشن گوئیاں ہیں اور نئے عہد میں وہ پیشن گوئیاں کس طرح سے خدا نے پوری کی ہیں۔ ہلیلویا۔ اور ان پیشن گوئیوں کے مطابق یسوع مسیح جو دنیا میں آیا تو یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر کون سے کام کیے؟ یسوع مسیح نے گنہگاروں کو نجات دی، یسوع مسیح نے معجزے کیے، ان کے ایمان کے عوض انہیں شفا بخش دی۔ ان باتوں کو غور سے سنیے گا۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیت مقدسہ کو آج کی پہلی تلاوت ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے سنیں گے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیت مقدسہ۔ جی حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ دوسری آیت 10، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ آنے کو تھا، دنیا میں آنے کو تھا۔ آج جب ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو سنتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی اور یہ پیشن گوئی پہلے سے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کی، اور یہ بپتسمہ دینے والے یوحنا کی پیشن گوئی تھی کہ وہ حقیقی نور جو ہمارے درمیان آنے والا ہے اور اس نور کو ہم قبول کر لیں۔ اور وہ نور آیا، اور جب وہ نور آیا تو لوگوں نے اس نور کو اپنی زندگی میں لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ دونوں آیتیں ہمیں ایک یسوع مسیح کی آمد کے متعلق بتاتی ہے اور دوسری یسوع مسیح کی آمد کے بعد کا واقعہ پیش کرتی ہے۔ جب یسوع مسیح دنیا میں آ چکے تھے تو لکھا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ اب دنیا کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے؟ یسوع مسیح کے۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ کریٹر، وہ خالق ہے، وہ مخلوق بن گیا ہمارے لیے، اور اس نے مخلوق بن کر ہمارے لیے کام وہ خالق والا ہی کیا۔ پہلے ہم جسم میں نہیں تھے تو آدم کے وسیلہ سے ہمیں جسم میں خدا نے پیدا کیا، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے روح میں ہمیں پیدا کیا نئے سرے سے۔ نیکودیمس کو جب یسوع مسیح نے جواب دیا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تو یسوع مسیح نے اسی بات کے متعلق ہی کہا تھا کہ جو مجھ سے، آج ہم یسوع مسیح سے پیدا ہوئے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد، اور ان ساری باتوں کو ہم سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، تو آج اگرچہ مقدسہ مریم اس فرشتے کا وسیلہ سے، فرشتے نے سلام کیا، جبرائیل فرشتہ ناصرت میں ایک کنواری کو ملا اور پیغام دیا کہ وہ روح القدس سے حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس بچے کا نام یسوع رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جن باتوں کے لیے سیکنڈ بات ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ یسوع کی پیدائش کے وقت مریم جب حاملہ ہوئی تو یوسف کی شادی کیا مریم سے ہو چکی تھی؟ جی خالہ، یوسف کی شادی مریم سے نہیں ہوئی تھی، وہ صرف منگنی ہوئی تھی
और वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक दूसरे से उनका ताल्लुक नहीं था। और खुदा ने फरिश्ते को भेजकर यूसुफ को पैगाम दिया कि यूसुफ मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है। और हम वो कुदरत को अपनी जिंदगी में देखते हैं। जब हमारी जिंदगी में रूह कुदुस है तो उस रूह कुदुस की कुदरत से वो बेटा यीशु मसीह हमारे अंदर वो मुजस्सम कलाम मौजूद है, और उसकी कुदरत के वसीला से हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। अब हमें खुदावंद यीशु मसीह ने पैदा किया है, वो पैदा होके चले गया। लेकिन अब जो हमने पहले यूहन्ना की इंजील में इस बात को पढ़ा कि वो दुनिया में इसलिए आया कि दुनिया नए सिरे से क्या हो, पैदा हो। दुनिया को उसने आकर पैदा किया है। यहाँ पर हमने 10 आयत में पढ़ा कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। ये वो वाली दुनिया की बात नहीं हो रही कि जो सी जिस्मानी तौर पर पैदा हुई। ये वो वाली दुनिया की बात है जो सी रूहानी तौर पर पैदा हुई है, जो सी रूह में पाक रूह कुदुस के वसीला से नए सिरे से जो से लोग पैदा हुए। आमीन। तीसरी बात, बैतलहम का सफर। मरियम और यूसुफ बैतलहम में किस मकसद से गए थे? हाँ जी सुना। नो नो वो इस वास्ते उन्होंने आके ओके राइट जवाब कि वो मर्दमशुमारी के लिए गए थे। ओके ओके, जिन बातों के लिए ठीक मतलब कि अंदाजा नहीं है, ठीक है, वही हम बातें इस बाइबल मुकद्दस में से वही सवाल सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं। अगर एक को नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा उसका जवाब दे सकता है। तो वो उस मर्दम शुमारी के लिए बैतलहम को रवाना हुए और यूसुफ नासरत से बैतलहम दाऊद के शहर का सफर किया। इसकी गवाही वहां पर पूरी हुई कि मसीह वहां पैदा हुआ, क्योंकि जब तक खुदा ने जो मिका में इस बात की पहले से पेशन गोई दर्ज थी, और इसको मिका 5 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है कि लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगर हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझसे में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मकसद जमाना साबिक और बाकदीमुल अयाम से होगा। ये पेशन गोई पहले से मेका में दर्ज थी। हम इस बात की स्टडी साथ ले रहे हैं कि जो बातें अलहामी औकात की खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पुराने आहद में से और नए आहद में से दर्ज की गई हैं, उनके हम ठीक ठीक जवाब जानते हो समझदारी के साथ। हाँ? तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। यीशु को पैदाइश के बाद एक चरनी में रखा गया। हाँ जी साइमा, चरनी किस जगह पर बनाई गई? यीशु को चरनी में रखा गया, वो कौन सी जगह थी? हाँ, तबेला। हालेलुया। उसको वहां पर रखा गया जहां पर तबेला था। गाय, भैंसें और बकरियां, भेड़े और जानवर वहां पर बंधा करते थे, क्योंकि इस नबूवत को भी खुदा ने अपने कलाम में पूरा किया है कि वो बैतलहम जाएगा लेकिन उसको वहां पर जगह न मिले। खुदा अपने वादे याद दिला रहा है कि जो जो पहले खुदा ने कहा है वही एज इट इज यीशु मसीह
जब पैदा हुआ उन औकात में वो अलहामी औकात, वो बातें वो पूरी हुई हैं, उस वक्त में पूरी हुई हैं जिस वक्त का जिक्र पुराने अहद में मौजूद है। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई आने वाले के लिए ऐसी नबूवतें दर्ज बाइबल में नहीं हैं सिवाय एक के जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। इसके अलावा कोई बाइबल में किसी के आने की पैदाइश का जिक्र और उसके मर जाने का जिक्र या उसके उठाए जाने का जिक्र पहले से दर्ज जो कुछ है वो बाद में है। उसका दुनिया में आने के बाद में हर एक रेफरेंस है कि ये नबी है, ये खुदा का ममसूख है, ये खुदा का नजीर है। इनका खुदा के साथ क्या ताल्लुक है वो ताल्लुक बाद में शो किया गया है, लेकिन एक वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है जिसके लिए पहले से ही इस बात की नबूवत की गई कि वो अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का हालेलुया। ये वाहिद है दुनिया में बादशाह जिसकी नबूवतें पहले से दर्ज है। पास फरिश्ता आया ये पैगाम लेके कि आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, हालेलुया, जो हमारे लिए क्या है, नजात देने आया है। और वो फरिश्ते ने जब पैगाम दिया तो उन्होंने वो पैगाम सुनने के बाद जाकर यीशु को बैतलहम में पाया, किसमें, चरनी में, और वहां पर लोगों को बशारत दी कि देखो आज दाऊद के शहर में एक नबी है, हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें हमें यीशु की पैदाइश के मुतालिक हर एक को पता होनी चाहिए। हाँ? ये रिवीजन पता क्यों हो रही है? रिवीजन इसलिए हो रही है कि हमने जिस दूल्हे के साथ जाना है, हमने जिस बादशाह के पास जाना है, हमने जिसकी बादशाही में अपने आप को लेके कायम रहना है, तो वहां पर हमें उसके साथ उसके म्यार के मुताबिक कलाम की अंडरस्टैंडिंग और याद दहानी होनी चाहिए। और ये एक दिन का इवेंट नहीं है, ये सारी जिंदगी का, ठीक है। हम भी आपकी तरह छोटे छोटे थे, पहले इसी तरह सुनते थे, लेकिन हम भी गौर नहीं थे करते, ध्यान में नहीं थी रहती बातें। लेकिन जब इन बातों की समझ आई और खुदा ने इन बातों की समझ दी है, तो अब बगैर कई बातें देखे भी हम जुबानी निकल दिया है। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, आगे एक क्वेश्चन आ गया जी। मजूसी था और सिजदा करने के लिए यीशु के पास गए, क्या क्या लेके गए जी? हाँ जी, बहन सारा। हाँ जी, ओ वेरी गुड। सोना और जुबान। सोना खुदा की बादशाहियत में बादशाह को नजर किया गया और सोने से बादशाह की निशानदेही की गई, ठीक है। और लुबान जो सा था वो इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह की अलुहियत, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश उस लायक की जाए। लुबान अक्सर हैकल में बखूर की जगह पर जलाया जाता था ताकि उसकी राहत अंगेज खुशबू आसमान की तरफ, खुदा की तरफ उठे, और खुदा उस राहत अंगेज खुशबू को लेकर उस जगह पर वो बरकत दे, वो अपनी हजूरी उतारे, वो लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करे, वो उनको शिफा दे, वो उनको रिहाई। और यीशु मसीह के लिए तीसरी चीज मोर जौन सा था, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मुर्दे को दफनाया जाता है, उसका कफन जब पहनाया जाता है तो वो उस पर वो वाली खुशबू लगाई जाती है। और यीशु मसीह के लिए ये तीनों पेशन गोइयां पहले से
दर्ज थी कि यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह अलहुयत का मालिक है, क्योंकि सारी कायनात की मामूरी उसमें से होकर काम करती है। और तीसरी बात मोर कि यीशु मसीह का कफारा था, और वो चीज पहले से मालूम थी कि ये कफारे के लिए ही पेश किया गया है। इन तीन चीजों का बाइबल मुकद्दस में बहुत बड़ा रीजन है, और इनको हमें याद रखने की जरूरत है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए फरिश्ते ने कहा कि यूसुफ को खबरदार किया कि यूसुफ मरियम और यीशु के साथ मिस्र को भाग जाए ताकि वो बचाया जाए। किस बादशाह से बचाया जाए? हाँ जी, हेरोदिस। हालेलुया। हेरोदिस बादशाह ने जब उस वक्त का हाकिम था तो उसने 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया था, इसीलिए कि यीशु मसीह भी उसमें कत्ल किया जाए। लेकिन खुदा का एक अलहाम यीशु मसीह के लिए पहले से वो नबूवत दर्ज थी कि रामा में एक आवाज आई, राहल अपने बच्चों के लिए रो रही है और मातम करती है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये भी पुराने अहद से पेशन गोई थी। मुझे बताएं कि ये ऐसे पेशन गोइयां यीशु मसीह के लिए पहले से जो दर्ज थी, क्या आगे आके वो पूरी हुई? तो जवाब है यस। और यीशु मसीह के लिए वो सारी पेशन गोइयां पूरी हुई। हालेलुया। जिन बातों के लिए वो नासरत से वापस आया, तो 4 चीजें जो सी है इसके लिए हमें बताई जाती है कि हेरोदिस की मौत के बाद एक फरिश्ते ने यूसुफ को बताया कि वापस आना महफूज है। खानदान जो पहले से यूसुफ का नासरत में था, वो उसका अबाई खानदान और अबाई जगह थी जहां पर यीशु उसके साथ बढ़ता रहा। जी इमरान साहब, किस तरह से बढ़ता रहा? पहली बात उनके ताबे रहा, और खुदा की कुदरत में भी लिखा है कि वो बढ़ता रहा। यस, यीशु मसीह हिकमत, दनाई और कदो कामद में और खुदा के फजल में बढ़ता रहा। हालेलुया। ये चीजें वहां के मुकामी लोग जो उनसे नासरत में रहते थे, यूसुफ नासरत का शहरी था, और इसीलिए फिर कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? लेकिन खुदा ने अपने बेटे को वहां से बुलाया, और इसीलिए उसने मिस्र में भी जाने दिया, और मिस्र से भी खुदा ने उसको बुलाया। किस तरह से? जिस तरह कौम बनी इस्राइल को वहां से निकाला मिस्र की गुलामी में से, खुदा ने मिस्र में से यीशु मसीह को बुलाया। ये सारी अलहामी पेशन गोइयां खुदा ने अपने कलाम में दर्ज की हैं, जिनको हमें सीखने, समझने और याद रखने की सवाल जवाब खत्म है। इस बात को जो खुदा ने मेरे दिल पे रखी, ये कुछ बातें थी जो सी हमें याद रहनी चाहिए, हमें याद दिलानी चाहिए, एक दूसरे को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सा सफर है ना, बादशाही का सफर, किंगडम का सफर है, और बादशाही के सफर में सब आराम से दाखिल नहीं हो सकते। बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत सी रुकावटें हैं। अबलीस शेरे बब्बर की तरह धारता फिरता है कि किसको फाड़ता है। वो हमें बादशाही में दाखिल होने नहीं देना चाहता, वो हमें हर हालत में रोकना चाहता है। ये जो सी पहली आयत हमने यूहन्ना की इंजील में से पढ़ी थी, इसी को निकालें फिर से। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, हाँ जी, दुनिया में आने को था। यस,
वो दुनिया में था हाँ जी और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई जी और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसे कबूल ना किया लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से न जिस्म की ख्वाहिश से न इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। वो खुदा से पैदा हुए हैं। हाँ जी और कलाम मुजस्सम हुआ। हाँ जी पढ़ते जाएं जी। और फजल और सच्चाई से मामूर होकर जी हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हाँ जी यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 6 महीने बाद पैदा हुआ था। मरियम को फरिश्ता ने कहा कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो तेरी रिश्ते में बहन है उसके भी वो हामला है और उसके भी 6वां महीना है और ये यूहन्ना उस अलिशबा से पैदा हुआ था। लेकिन गवाही देता है कि यीशु मसीह वो मुझसे भी पहले और उसकी गवाही यूहन्ना ने दी कि वो खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ है और फजल और सच्चाई से मामूर हुआ है। वो फजल और सच्चाई हमारी जिंदगियों में उस कलमाए खुदा के वसीला से वो कायम करने आया है ताकि हम उस दुनिया में जो बेदीन दुनिया है, जो गुनहगार दुनिया है, जो जहन्नम में डाली जानी दुनिया है, उसमें से हम अपने आप को बचा सकें। और उसको बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और यूहन्ना कहता है इस बात को 15 आयत में यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी, पुकार कर कहा ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया यानी फजल पर फजल। और इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। हालेलुया। खुदा को जाहिर करने वाला उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह है। खुदा को हम और पीछे जितनी दुनिया थी वो सिर्फ नाम से जानती थी और खुदा के काम आकर यीशु मसीह ने जाहिर किए और उस मुजस्सम कलाम ने हर एक चीज को फिर से नया बना दिया। पुरानी चीजें देखो सब कुछ ये है खुदावंद यीशु मसीह के आने का पर्पस कि हमसे बाप को मिलाया, हमें मुतारिफ कराया कि बाप कौन है और हम उसके बेटे और बेटियां कैसे बन सकते हैं। जो कोई ईमान लाएगा
जो कोई तौबा करेगा, जो कोई उस बात पर अमल करेगा, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ उसका फर्जंद। ये छोटे से पैरे में सारी बातें क्लोज कि क्या उसका मकसद था इस दुनिया पे। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियां खुदावंद की हुजूरी में सीरियस रखें, ठीक है। कलाम हमें हर वो आने वाली बात, जिस तरह हमने पेशन गोइयों को पढ़ा कि वो पूरी हुई, तो ये कलाम भी जो हम सुनते हैं ना, वो एज इट इज ऐसे ही पूरा हो। जैसे खुदा ने अपने बेटे के आने की पेशन गोइयां पूरी की ना। ये पेशन गोइयां सुनाने का मतलब ये नहीं था कि हम इधर कोई मतलब कि क्विज प्रोग्राम वैसा कोई कर रहे हैं, नो। ये याद रखने की बातें हैं कि इन बातों को हम अपनी जिंदगी में हर वक्त याद रखें, एक्टिव रखें, ताकि हम जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ एक दुल्हन की मानद तैयार, जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है कि मेरा दूल्हा कब आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगी। और फिर यीशु मसीह ने इस दुल्हन को लेकर आने के लिए अपना लहू बहाया है। उसने कहा कि जो अपने जामे इस लहू से धो के रखेगा, हर वक्त अपने जामे मैले नहीं होने देगा, वो सिर्फ कलीसिया के साथ उठाया जाएगा। तो बाकी फिर कमजोर जो से हैं वो इधर ही रह जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट दूसरी क़यामत में शामिल होंगे। तो बड़ा खतरनाक काम। खुदा आपको बरकत दे। आज का ये सारा हमारा जो सा कलाम का एक दूसरे के साथ सुनाना था, खुदा ने हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया है। हम उसकी ईद, उसकी पैदाइश को खुले दिल से, चाक चाक नाल नहीं, खुले दिल से कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमान में हूँ, मैं कायम हूँ, मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है, मुझे रास्ता भी पता है, उसका नक्शा भी पता है, मुझे अपना निशान भी पता है। मेरी आंखें भी यीशु की सलीब पर लगी रहती हैं, यीशु पर लगी रहती हैं, और मैं एक दिन यीशु के पास जाऊंगा। आमीन।